Good morning, my dear student. Today we are going to read your class 8 SST geography portion, chapter 2. I think all of you familiar with the name of your chapter 2. Yes, that is land, water, natural vegetation, wildlife, resource. We have discussed in my previous video about natural vegetation and wildlife, where I have discussed what is the importance of wildlife in human life, what is the importance of natural vegetation in human life. I have also explained the story of teachers and their students who visited uh, an exhibition where they saw that various type of handicrafts, various type of things which was made from natural vegetation, like scarf, like the bag, beautiful bag, and we also connected with the various goods which is in your house, which made from the bamboos, which made from the woods. हमने आपसे फर्नीचर की बात की थी, हमने आपसे कहा था अपने घर में कुर्सियों को देखिए, टेबल को देखिए, आप जिस बेड पे सोते हैं वो देखिए। इवन मैंने कहा था कि आपकी मदर जिस पे रोटी बनाती हैं, चौका और बेलना वो भी लकड़ी के बने हुए हैं, अलमारी लकड़ी की। आज साथ ही साथ हमने कई सारी चीज़ों पे बांस के बने हुए आपके सोफ़े, आपके बने हुए कुर्सियाँ और भी बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हमने उनसे बात की थी। और फिर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बात करते हुए कहा था कि पृथ्वी पे जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, उनका अपना महत्व है। वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट है और एक दूसरे के बीच की बॉन्डिंग है। मैंने आपसे कहा था कि वाइल्ड लाइफ में अगर आप एनिमल्स की बात करें तो बर्ड्स हैं, इंजेक्ट्स हैं, बीज हैं। हमने वल्चर के भी नाम लिए थे, गिद्धों के नाम लिए थे। गिद्ध क्या होता है कि मैंने कहा गिद्ध प्रकृति का सफाई करता माना जाता है। गिद्ध वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है मानव को जिससे मनुष्य उन चीज़ों को एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ ये इन्वायरमेंट उसको मिल सके। और हमने लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहा था अपनी क्लास में कि ये मानव जीवन के लिए ये वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन प्रीसियस रिसोर्स माने जाते हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इन सब के साथ सामंजस्य बना के रखना चाहिए। वी हैव टू कंसर्न ईच अदर। If we'll consort it, then we have no problem in future. If we disbalance the ecosystem, if we try to disbalance the biome, if we try to disbalance the rules which is set up by God, then we have to face so many difficulties in our life. हमने कहा था कि पेड़ों से सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को सेव करते हैं और जानवरों को शेल्टर देते हैं। साथ ही साथ हमें फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। आम के सीजन, गर्मी का महीना चला है, इस समय गर्मी का महीना है, समर सीजन है, इस समय पेड़ों में आम के खूब फल लगे होंगे, लीची आने वाली होगी। ये सब कहाँ से आते हैं? दीज आर ऑल द गिफ्ट विच इज गिवन बाय नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा जो हमें मिल रहा है एज ए फ्री ऑफ कास्ट, एज ए गिफ्ट। आप भी अपने यहाँ पेड़ लगाइए और इन चीज़ों को प्राप्त करिए। आज
हम इस टॉपिक को इससे आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ of vegetation depend primarily on the temperature and moisture. The major vegetation type of the world are grouped as forest, grassland, scarps, and the tundra. In area of the heavy rainfall, huge trees may thrives. The forest are thus associated with area having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of tree and their density reduces in the region of moderate rainfall. Short stunted trees and grasses grow, forming the grassland of the world. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. In such area, plants have deep root and leaf have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by the transpirations. Tundra vegetation of cold polar region, the comprise of mosses and lynches. My dear student, author very easy way want to inform you the distribution of natural vegetation on the worldwide level. He categorized the natural vegetation behalf of various climatic zone and the size of the tree, categories of the vegetation. He uses to understand you. क्या समझाना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है कि कहता है कि जलवायु के आधार पे, वृक्षों के बड़े और छोटे होने के आकार पे, ग्रासलैंड के आधार पे, और फिर क्लाइमेटिक जोन में बांटता है। टुंड्रा प्रदेश, टैंगा प्रदेश, मेडिटेरियन रीजन्स, इंटरट्रॉपिकल रीजन्स के आधार पे वनस्पतियों का आकार, प्रकार, स्वरूप बदल जाता है। कहता है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड द प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पतियों का जो विकास है, ग्रोथ है, वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। अगर प्राथमिक आधार में बात करें तो वो एक है टेम्परेचर, दूसरा है मॉइस्चर। एक है ताप और दूसरा है नमी। ताप कितनी होगी, टेम्परेचर क्या होगा और कितनी नमी होगी, इससे वनस्पतियों पर बड़ा फर्क पड़ता है। उनके विकास, उनकी वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट। कह रहा है जो बहुत सारे वेजिटेशंस हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, वो कई ग्रुप में, जैसे फॉरेस्ट के रूप में, जंगलों के रूप में, ग्रासलैंड के रूप में, जैसे स्कार्प्स एंड टुंड्रा के रूप में। टुंड्रा की जलवायु या झाड़ियाँ, डिजर्टेड एरिया में देखिए छोटे बहुत बड़ी झाड़ियाँ दिखेंगी। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, वो क्षेत्र जो खूब वर्षा वाला होता है। ह्यूज ट्री विथ एरिया हैविंग abundant वाटर सप्लाई एट द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री इन देयर डेंसली रिड्यूसेस। वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे खूब वर्षा हो, वहाँ पे ऑब्वियसली खूब अच्छे वन उगेंगे और ये वन बड़े होंगे, लंबे होंगे, उनके सारे घासलैंड विकसित होगी, ग्रासलैंड। जैसे अगर बात करें तो वनस्पति की वृद्धि में मुख्य रूप से मैंने आपसे की कि दो चीज़ें, वर्षा और आर्द्रता, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इस पर निर्भर करती है। विश्व की जो वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। We can categorize the whole natural vegetation in 4 groups. First, forest. Second, grass. Third,
सेकेंड ग्रासलैंड, थर्ड थर्ड इट मीन्स स्क्रब्स, झाड़ियाँ या गुल्म, और फोर्थ टुंड्रा रीजन्स वेजिटेशंस, जिसमें लीचेंस, काई और छोटे छोटे वनस्पतियाँ आती हैं। तो 4 प्रकार की वनस्पतियाँ हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्लाइमेटिक जोन के आधार पे। अब कहता है इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, कहता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है, वृक्षों का आकार भी और उनकी सघनता, उनकी डेंसिटी भी कम होती है, डेंसली भी कम होते चले जाते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष होते हैं, छोटी घासें उगती हैं, जिससे विश्व में घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, जहाँ बारिश नहीं होगी, डिजर्टेड एरिया या सेमी एरिड एरिया, शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रेसिपिटेशंस से होने वाली आर्द्रता को हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार मुमी सतह वाली हो जाती हैं। और जो ट्रैंगा रीजन्स हैं, टुंड्रा रीजन्स हैं, जो शीत ध्रुवीय प्रदेश हैं, टुंड्रा वेजिटेशंस, वहाँ पे मास, लाइकेन, ये सब उस पर सम्मिलित होते हैं। अगर आप पिक को देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेंसली फॉरेस्ट दिख रहा है, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट साथ साथ है, घास के प्रदेश दिख रहे हैं आपको, और सीधा आपके बाद फॉरेस्ट दिख रहा है। इट मीन्स यू हैव क्लियर इंफॉर्मेशन दैट द ग्रासलैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन अलॉन्ग विथ एक साथ साथ दिखाई दे रहा है आपको। फिर आपको जस्ट अपोजिट साइड में एक और पिक है आपकी, यहाँ पे आपको पाइथन इन फॉरेस्ट, एक बड़ा अजगर जंगल में दिखाई दे रहा है। और फिर आपको एक डेंस फॉरेस्ट भी दिखेंगे। ये देखिए, द लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन द ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी, सुनामी आने के बाद जंगल की स्थिति क्या हो गई थी, एक पिक के रूप में दिखाया है। और एक डेंस फॉरेस्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिक कहाँ गई, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको सीधे उस पिक पे ले चल रहा हूँ। चलिए हम पिक को बाद में दिखा लेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वल्चर के। डू यू नो वल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ द किडनी फेल्योर shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is the similar to aspirin or ibuprofen. Effort are one to ban the drug for livestock. Use and breed vulture in captivity. आज भारत में गिद्धों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है जानवरों को दर्द निवारक गोलियां दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। दर्द निवारक गोलियों में सबसे कॉमन नेम है आइब्रोफेन या डाइक्लोफेनिक ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं सारी। इससे क्या होती है, गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है और गिद्ध मरने लगते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनिक, एस्पिरिन अथवा ब्रूफेन जैसे दर्द निवारक दवाओं से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होती है और गिद्ध आसानी से मर जाते हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध को प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। गिद्ध को बचाना नेचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर गिद्ध रहेंगे तो पर्यावरण साफ करते रहेंगे, गिद्ध नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, जिससे बेहद समस्या सबके सामने आ सकती है।
आपको इन चीज़ों पे हम देख रहे थे। हमने उस फॉरेस्ट के बारे में बात की। फॉरेस्ट के बारे में डिटेल इसमें नहीं है, किसी और चैप्टर में लग रहा है वो दिखा है। डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल सेट्स है उस पर डालिए डेंस फॉरेस्टली एरिया या ट्रॉपिकल रीजन्स फॉरेस्ट, तो आपको दिखेगा वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, घने वन। तो वहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब कहता है हमने यहाँ तक देखा कि किस तरह से कौन कौन की वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ तक आती हैं। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द एवरग्रीन एंड डेसिडियस। वन और वनों को उनकी पत्तियों के गिराने के आधार पे हम दो भाग में बांटते हैं, एक एवरग्रीन और दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन वो होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, और डेसिडियस वो होते हैं जो अपने पत्तों को समय के गिरा देते हैं, फिर उसमें नए पत्ते कुछ दिन बाद आते हैं। इनके दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एवरग्रीन forest do not shed their leaves simultaneously in any seasons of the year. Deciduous forests shed their leaves in the particular season to conserve loss of the moisture through transpirations. These forests are the further classified as tropical or the temperate based on their location in different latitudes. You can have learned in detail about the various forest types, the distributions, and the associated animal life in the previous class. Today, in the world, than there were 2 centuries back, to feed the growing, the large area of forest have been cleared to grow crop. Forest cover all over the world is the vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. आज वनों को उनकी पत्तियों को गिराने के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, एक एवरग्रीन, दूसरा डेसिडियस। एवरग्रीन को कहते हैं सदा हरित पौधे, और डेसिडियस को कहते हैं शुष्क या पर्णपाती वृक्ष या पर्णपाती वन। नाम से ही क्लियर है, सदाहरित वाले पौधों में पत्तियां वो कभी नहीं गिराते, साल भर उनके पत्ते हरे भरे रहते हैं। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनकी पत्तियां साल में गिरा दी जाती हैं और वो प्रॉपर साल भर हरे भरे नहीं रहते। ऐसा वो क्यों करते? क्योंकि जो वृक्ष जो प्रेसिपिटेशन होता है उससे पानी की अधिक मात्रा उनसे निकल जाती है। इसकी दर को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए एक विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में, विभिन्न लैटिट्यूड में, डिफरेंट लैटिट्यूड्स में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तथा शुष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किया जाता है। इनको हम लैटिट्यूड के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। फॉरेस्ट को उनके डिस्ट्रीब्यूशंस एसोसिएट किया जा सकता है। कहता है कि these forests are further classified as a tropical or temperate based on their location in different latitudes. ट्रॉपिकल और टेम्परेट कहता है पत्तियों के गिराने के क्रम में मौसम जलवायु के आधार पे इन्हें हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। और कहता है कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनको कहता है कि डिफरेंट लेटिट्यूड्स पे इनको दो आधार पर बांट सकते हैं, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल। बांट करके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कहता है इनके बारे में आपको पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, डिटेल किया होगा, विस्तार से इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, टुडे देयर आर मेनी मोर पीपुल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। आज पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उसमें उससे कहीं अधिक लोग हैं। पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज कर रहा है।
पॉपुलेशन के लोगों की नेसेसरी नीड्स, मतलब भोजन की आपूर्ति के लिए एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जा रहा है। और ये जंगलों को काटना, वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष को काट दिए गए, जिससे विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। हमें इस वनों को बचा के रखना चाहिए। वी हैव टू कंजर्व दिस फॉरेस्ट बिकॉज दिस इज द ब्रीथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मानव की सांस लेने की, मानव के जीवन है। ये हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। इट इज़ आवर ड्यूटी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। प्लांट्स give the shelter to the animal and together they maintain the ecosystem. Change the climate and human interference can causes the loss of natural habitats for the plant and animal. Many species have become the vulnerable or endangered and some are on the verge of the extinctions. Deforestation, soil erosion, the constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human made and natural factors which together accelerate the process to examinations of these great natural resources. One of the major concerns is the increasing incidence of the poaching that result in the sharp declines in the number of particular species. The animals are poached and the collection and illegal trade of the hides, skin, nails, teeth, horn as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhino, elephant, snow leopard, ostrich and peacock. This can be conserved by increasing awareness. This is very important. We have to think about that. We have to learn about that. कि हमें इस नेचुरल वेजिटेशन को बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन पे ध्यान देना है। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? कहते हैं वन फॉरेस्ट और आवर वेल्थ। ये हमारी संपदा है, ये हमारे लिए धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, प्रीसियस रिसोर्स है। प्लांट्स गिव्स अस शेल्टर टू द एनिमल। जंगल जानवरों को आश्रय देते हैं, शरण देते हैं। जानवरों का घर है जंगल। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। और साथ साथ जंगल इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। चेंज द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काजेज ऑफ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बदलाव, स्थितियाँ महत्वपूर्ण है मानव के लिए। अगर इसमें थोड़ा बदलाव आए तो मानव जीवन प्रभावित होगा इससे। आर इनग्रेव्ड एंड द सम एंड वन वेर एक्सटेंशन, deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides, some of the human made and natural factor। वनस्पतियों के नष्ट होने के कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवीय कारण है। कहते हैं वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं, इकोसिस्टम को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित हो गई। जंगली जातियां, एनिमल्स स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज आल्सो आज नष्ट हो रहे हैं, संकट की स्थिति में आ गए। रेड डाटा बुक में उनका नाम चला गया
और कुछ तो लुप्त हो गए, कुछ लुप्त के कगार पे हैं। एक बड़ी समस्या से हम ये मानव जीवन फेस कर रहा है। बहुत सी जातियाँ जो आज संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वन डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और जो नई एक्टिविटीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, घर बन रहे हैं जंगलों को काट के, इन सारी चीज़ों से, इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर के रूप में सुनामी, फ्लड, ड्राट, लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर, इन सारी चीज़ों से भी प्राकृतिक वनस्पतियों का बड़े पैमाने पे डिग्रेडेशन हो रहा है। ये मानव जनित और प्राकृतिक रूप से वनों को नष्ट होने के कारण है। इसमें कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के विलुप्ति का कारण बनते हैं, लुप्त होने का कारण बनते हैं, उसको नष्ट करने का कारण बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, ऐसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, लोग को जानवरों के देखने के लिए म्यूजियम में जाना पड़ेगा। आज जो आपके सामने पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स, उसे देखने के लिए आपको म्यूजियम में जाना पड़ेगा। आज की मुख्य जो चिंता है, चिंताओं से जो शिकार की संख्या बढ़ रही है, लोग शिकार कर रहे हैं जानवरों का, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसमें कुछ खास जातियों को ही टारगेट किया गया है, इससे उनमें बहुत तेजी से उनकी संख्या में कमी आई। पशु खाल के लिए, पशुओं के चमड़े के लिए, पशुओं के नाखून के लिए, नेल के लिए, उनके दांत के लिए, उनके पंखों के लिए, साथ साथ उनके सींगों के लिए बड़े पैमाने पे इलीगल ट्रेड हो रहे हैं, गैर कानूनी व्यापार किए जा रहे हैं इन जंतुओं के, उनको बड़ी संख्या में मारा जा रहा है। इसमें ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो आज विलुप्ति की कगार पे हैं। चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रोकोडाइल, टार्टाइज आल्सो, कछुए तक को नहीं छोड़ा इंसान ने। इनका अवैध व्यापार करके इनको आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज ये विलुप्ति के कगार पे खड़े हैं। आज सबसे जरूरी है कि ह्यूमन अवेयरनेस जगा के इनकी सुरक्षा की जाए, इनको बचाया जाए, क्योंकि जब तक ये बचेंगे नहीं, मानव का जीवन सफल नहीं हो सकता, मानव का जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। इन चीज़ों को समझने के लिए इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्लैक बक की पिक है, देखिए कितनी सुंदर हिरन है। आप और सारे एनिमल्स को भी देख सकते हैं। आप पेपर कटिंग में देखें, कुछ एक्टिविटीज़ है, आप कलेक्ट करिए, आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ब्राज़ील के जंगलों में ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने आग लगवा दी। ब्राज़ील के जंगल, अमेजन के जंगल दुनिया के फेफड़े कहे जाते हैं, लंग्स कहे जाते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन पूरे अर्थ को यहीं से प्राप्त होता है। लेकिन आज मानव अपनी असीमित आवश्यकताओं के लिए इन निरीह प्राणियों की हत्या कर रहा है, इन जंगलों को जला रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर जंगल जले थे। आप कुछ दिन पहले की न्यूज उठाइए, आप लिखिए फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया, फॉरेस्ट फायर इन ब्राज़ील, 2 लाइन टाइप करिए, आपके न्यूज खुल के आएंगे। फिर आप वहाँ देखिए कितनी बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों के साथ, जानवरों के साथ, नेचुरल वेजिटेशन के साथ जो एक्ट मानव ने किया वो क्या क्षम्य है? इट इज़ पॉर्डनेबल? नो, नेवर, इट कैन नॉट। हम कभी नहीं इसे क्षमा कर सकते। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। जितना अधिकार हमारा इस धरती पे है, उतना ही अधिकार उन जानवरों का भी है, उन वनस्पतियों का भी है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम दोनों के अधिकारों की बात करें। देखें, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे नेचुरल वेजिटेशंस पे, और आई थिंक नेशनल पार्क पे बात करेंगे। एक टॉपिक आपका छूट रहा है, फिर इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।